Okay. Now you again save this template, go to the website, Okay. So I filled the template select the file. three. You come to the website and you, after saving, upload the file and click on convert. As you can see now अभी clear है, no entries. तो ये Now deleted. here you import. ठीक है. So आप देखेंगे सारी entries आ गई है with narrations. परफेक्ट. नरेशंस भी दिखा दीजिए आप. या नाइस. Okay, so welcome friends, welcome to your channel Efficient Corporates, where we learn to be efficient and not only busy. So today's video is a very different and very special one because we will be discussing about one tool which is made by a CA article student, and the tool, after watching this video and once you use this tool, you will never have to pass any entry in Tally ERP9 or in Tally Prime manually. There's an automated way of doing it, and hundreds of entries can be passed within a minute. So I hope you like the video, so do watch. Okay, so welcome everyone, welcome to your channel Efficient Corporates, and today we have with us Preet Mehta, and I'm very excited for the today's video because he is a CA student and he has himself developed one automation tool which he uses during his articleship, and also have helped many clients to automate their entries in Tally. So yeah, we would love to know more about the tool. So Preet, thanks for coming and welcome to the channel. Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity to display my tool to the larger audience. Okay, Preet. So before we start, I would want you to give a small intro about अपने बारे में एंड कैसे आपने ऑटोमेशन की जर्नी स्टार्ट की एंड ऑल. एक्चुअली क्या होना सर, द स्टोरी बिहाइंड इट इज कि जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा हूँ अभी भी, बट वो टाइम पे जब मेरे को बैंक की एंट्रीज मारने दी गई थी, हमारे फर्म में अकाउंटिंग का काम बहुत ज्यादा है एक्चुअली. तो वो बैंक की एंट्रीज मारते मारते आई गॉट बोर्ड, लाइक कि ये प्रोसेस को कोई तरीके से इजी कर सकते तो देखा जाए कि टैली में एक एक एंट्री मारना इज लाइक एंटर 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 टैप 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 प्रेस करो, तो इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट. तो ये ढूंढते ढूंढते मैं किसी वेबसाइट पे गया था, जनानी सर्विसेज समथिंग दैट वेबसाइट वाज. वहां पे मैंने ये टूल देखा था, बट उनके अपने क्राइटेरियाज थे कि 100 एंट्रीज नहीं इंपोर्ट कर सकते हैं. तो आई थॉट मैं ही बना लेता हूँ ये टूल, क्योंकि हमारे बैंक स्टेटमेंट जो रहते थे इट्स लाइक थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज, तो मैं कहाँ उसको 10-10 में स्प्लिट करके अपलोड करूँ. तो दैट वे आई स्टार्टेड मेकिंग दिस टूल एंड फिर बनाया एंड आई एक्चुअली इम्प्रूव ऑन दैट प्रोसेस. जैसे मेरे टूल में एक सर्च बार भी ऐड कर दिया मैंने, जो उस टूल में मेरे को नहीं मिला, विच सेव्स अ लॉट ऑफ ऑल्ट टैप करके टैली में जाके लेजर का नाम ढूंढना. सो दैट वाज, एंड उसके अलावा भी मैंने काफी दूसरे टूल्स भी बनाए, आपसे ही सीखे थे. सो दैट वाज ग्रेट. सो एंड वन थिंग आई वुड वांट टू से द ऑडियंस इज दैट ये टूल है ना, प्रीत ने पाइथन कोडिंग के थ्रू बनाया है. And yeah, matlab, and the tool is hosted on a website, so definitely we'll see the tool, and Preet will definitely give the demo. So Preet, ये tool में जैसे ना हमारी बात हुई थी, तो we have 4 steps in which we will be doing this automation. First is prerequisites, कि हमें क्या settings करना है पहले, वो template कैसे मिलेगा, वो फाइल, और हमें टैली में क्या सेटिंग्स करने. फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप इज वो टेम्पलेट को फिल कैसे करना, एंड थर्ड स्टेप विल बी उस टेम्पलेट को जो हमने फिल किया है एक्सेल में, उससे एक्सएमएल जनरेट कैसे करना है ताकि वो एक्सएमएल फाइल एक बन जाए. एंड द फोर्थ स्टेप में उस एक्सएमएल को हम इंपोर्ट करेंगे टैली में. So these are the 4 steps, and as we discussed, it is for both Tally Prime as well as Tally ERP9. तो आपके पास पुराना टैली है तो उसमें भी ये टूल आपका काम करेगा. So Preet will be showing demo for both of the case. So मतलब I'm really excited. Let's see Preet. तो आप एक एक करके प्लीज बताइए. You can share your screen and tell that the entire steps. तो फर्स्टली आई शो कि ये वेबसाइट का एड्रेस क्या है एंड ये टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे कहाँ से. तो वेबसाइट का एड्रेस एज यू कैन सी इट्स metabridge08.pythonanywhere.com, easily accessible from Google if you type Preet Mehta Tally XML or Meta Business Solutions. Okay. See, it's here. So the first entry. So यहाँ पे you get the get template button. Here there are 2 versions. One is Tally ERP9, one is Tally Prime. Now the basic difference between these 2 options is कि एक में ना you can directly fetch the data from Tally,
You don't have to export the Excel and then import it again. वो डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाएगा, टैली से एक्सेल में आ जाएगा. Right. Okay. So if you have Tally ERP9 or older versions, you download this one, save it on. I'll save it on desktop. Now here is an important step. You have to go through the properties tab, and here you will find the unblock button. Okay. This is necessary because the Excel file contains macros, and macros are usually, by the Windows system. Macros do have the potential to damage your system, so Windows protects it by that. So now we'll first go to the Tally ERP9 template. The first page you will see is the readme page, where I have shared the details in case आप कहीं अटक जाए तो आपको ये help कर सकते हैं. The second page, here is the interface. This is the search box I was talking about, highlighted in yellow, and the shortcut to access is the Ctrl+B. तो हमने ऐसे ये टैली में ERP9 के लिए पहला डेमो दे रहे हैं, तो ये टेम्पलेट ले लिया. अब हमें टैली ERP9 में भी कुछ सेटिंग चेंज करना है उससे कॉन्फ़िगरेशंस में, और इट्स बाय डिफॉल्ट. टैली ERP9 में आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने का जरूरत नहीं है. टैली ERP9 में ऑल यू नीड टू डू इज डिस्प्ले अकाउंट्स, display list of ledgers, list of accounts. Here you can see it. ठीक है. You enter here, use Alt-E to export it in Excel, all the default settings. You don't have to change anything here. The Excel file will be generated. Now you go to where your Tally is installed. फिर वहाँ से ये फाइल लेनी पड़ेगी, master.xls. हाँ, हमने मतलब बेसिक थिंग दैट यू एक्सपोर्ट योर लेजर्स, है ना, अपने लेजर्स को एक्सपोर्ट करके आप एक एक्सेल फाइल में ले लो. ओके, ठीक है. सो दिस टू आर द प्रीरिक्विजिट्स. वन इज यू गेट द टेम्पलेट फ्रॉम द वेबसाइट, एंड सेकंड इज ERP9 में आप अपने लेजर्स को एक्सपोर्ट करके एक एक्सेल फाइल में ले आओ. सो वंस वी हैव डन दिस, स्टेप 1 इज कंप्लीट. So now starting with the step 2, which is filling the template जो हमें fill करना है. So how do we start with this? So here you have this import sheet button. You click it and tell it the location where your master file was, which you just exported. Export किया अभी Tally ERP9 से, उस फाइल को हम import कर लेंगे import sheet से. Okay. You just select it, then macros automatically processes it. Great, nice. And अभी आप देखेंगे तो ये आपका यहाँ पे आ गया सारा डिटेल्स जो अभी आपने जस्ट इंपोर्ट. ओके, राइट. तो इंपोर्ट करते मेरा ड्रॉप डाउन से आ जाएगा. ड्रॉप डाउन में उन सारे लेजर्स का नाम आ जाएगा. ओके. नाउ इन केस इफ यू आर वंडरिंग, द सेकंड बटन इज फॉर जब आप एक्सेल बंद कर देते हैं ना, तो ये जो यहाँ पे आपके सेव हुए ड्रॉप डाउन में ये सब चले जाएंगे. अच्छा. बट इफ यू हैव दिस शीट हियर एंड यहाँ पे जो भी डेटा है वो वैसे का वैसा है, एंड यू क्लिक रिफ्रेश लिस्ट, तो वो वापस आ जाएंगे. You don't have to again import the sheet. ठीक है. So this is the format that we have to fill. Let's go one by one. Now the next step is you fill the data. As it is said here, do not change this row because it's the title rows which my Python code actually reads and categorizes the data. So here you put the date in the format. You can either put this one or this format. Just dot wala allowed. 31/03/2025. As you can see, it automatically converts it into the dash format. So but you can't use the date के फॉर्मेट में होना चाहिए, और सिस्टम डेटा का आपके कुछ दूसरे फॉर्मेट में है तो आप अपना उसको बदल के डैश वाले फॉर्मेट में ले आओ. ओके. Now as you can see, I imported some data. I already put some data here. I changed just the date format. Narration we can keep. Narrations we can keep as it is. You can use anything in here. Any characters. Now here you have to select ये आपका voucher type क्या है, payment, receipt, contra या journal. Okay. You can also have your custom voucher types, which if you add here, they will automatically start showing there. Okay, ठीक है. Debit and credit. Then names. Debit, credit and amounts. Amounts में भी देखो formula से like जो debit में है वो credit में आ जाएगा. अब हमें सिर्फ एक ही जगह लिखना है, H में लिखना है, J में ऑटोमेटिकली आ जाएगा. Now I press Ctrl+V to go there. अभी यहाँ पे तो ऑलरेडी प्रोप्राइटर्स कैपिटल लिखा हुआ है, बट आप जब शीट डाउनलोड करेंगे तो आपको ऐसा ब्लैंक मिलेगा. तो यहाँ Ctrl+B प्रेस किया, डायरेक्टली वो कर्सर वहाँ पे चला गया. You can type in the ledger name. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोप्राइटर्स कैपिटल, फिल भी हो जाएगा. ठीक है. एंड इफ फॉर सम रीजन यू कांट फाइंड इट देयर, यू कैन ऑलवेज यूज दिस. जैसे मैंने अगर प्रोप्राइटर्स लिखा है खाली, ये पूरा ही जाएगा. जैसे अभी प्रॉफिट एंड लॉस पकड़ा है इसमें, so I can always press Alt and down arrow, so ये पूरा ही लिस्ट खुल जाएगा.
नाउ आई कैन सिलेक्ट कि मेरे को ये वाला, अब मैं कंट्रोल सी करूंगा कॉपी, या फिर आई कैन आल्सो डू कंट्रोल एक्स एंड व्हेन आई प्रेस एस्केप तो ये डायरेक्टली वहां पे उस सेल पे चला जाएगा एंड यहाँ पे मेरे को सीधा कंट्रोल वी करना है। दिस इज द मैकेनिज्म एंड अब यहाँ पे यू कैन एज यू कैन सी यहाँ पे देखो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किससे हुआ है, ये डायरेक्टली ये अमाउंट से मैंने परसेंटेज डाल दिया है। यस इट मीन्स कि आप फॉर्मूला भी डाल सकते। अभी यहाँ पे जैसे इंटरेस्ट अक्रूड ऑन लोन फ्रॉम, ओके सो यहाँ पे मेरे को ये डेमो देना था कि एक बार आपने इस शीट में समझो, जैसे अभी मैंने लोन रिसीव्ड फ्रॉम प्रीत यहाँ पे लिख दिया, so I don't have to like control V and again follow the process. I can directly write loan received and it will automatically fill from above. The sheet is complete in all aspects. Okay, great. I'll just save it and click this link here. Okay, आप यहाँ से भी लिंक डाल सकते हो। Nice. हाँ, डायरेक्टली वो वेबसाइट पे आ गया। नाउ यू चूज योर फाइल हियर। वहाँ फाइल को क्लोज करना नहीं सर, ओपन भी चलता है, बस सेव करना रहता है। सेव करके यू कैन डायरेक्टली मेक श्योर वी हैव सेव्ड फाइल। ठीक है। So now we select the template tally ERP9.xlsm and we click convert. So this step 3 automatically forward. ये मतलब क्लिक करते हैं I guess within 5 seconds मतलब इसने XML बना दिया। It depends on the amount of data. जैसे अगर 1500 entries है तो it usually takes 1-2 minutes. Okay, nice. Save here and now अभी हम tally में गए। As you can see पूरा blank है, no entries. Okay. तो यहाँ पे import पे गए, वाउचर्स पे सिलेक्ट एंड यहाँ पे आपको कंट्रोल ऑल्ट वी करके मतलब कॉपी पाथ करके मैं दिखाई देता हूँ। अब यहाँ पे गए import.xml, ये हमारा फाइल जनरेट हुआ है। राइट, import.xml तो हमने कॉपी एज पाथ ले लिया इसका, ताकि पूरा पाथ होगा, वरना आपको नेविगेट करके भी आप आ गए। यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट वी करेंगे, ये जो इन्वर्टेड कॉमास है यहाँ पे, दिस इज ये यहाँ पे कोट्स, हाँ इसको हटाना है, ये हटा दिया। नाउ इट्स ऑल सेट, सीधा एंटर किया, entries हो गए। Now if you see display day book, all our entries got imported. Nice, with narrations, great. I guess it's a very handy way because Excel fill करने में आपको hardly मतलब it take very easy to fill Excel, वो सबका data Excel में होता है, and just with a click of button you can convert to XML and with another click of button in Tally you can import. So I guess it's a lot of savings of man hour if people use this tool. So मतलब really मतलब तो magic की तरह है होगा ये for doing the Tally entry. अभी तो बहुत सारे लोगों ने ये टूल यूज करना भी चालू कर दिया। पहले पीपल वर लाइक कि प्राइवेसी कंसर्न्स है करके, बट मतलब द थिंग इज कि कोई अपना बैंक का डेटा किसी की वेबसाइट पे कैसे अपलोड कर दे, तो फॉर दैट मेरा तो स्टार्टिंग से ही मैकेनिज्म ऐसा था कि फाइल नेवर गेट स्टोर्ड ऑन आवर डिवाइस। अगर कुछ मतलब ऑन आवर सर्वर्स अगर कुछ भी एरर है फाइल में तो फाइल का कोड भी स्टोर नहीं होगा कि मतलब क्या कोड जनरेट हुआ है उसका, nice. वो भी स्टोर नहीं होगा। Once a file is downloaded, it's automatically deleted. तुरंत. Don't even save it for 24 hours. Correct. Nice. Now if you go to balance sheet, you can see कि profit भी transfer हो गया है, सारी entries as it is जैसी थी। Okay, I guess great. I guess was a very beautifully demonstrated कि कैसे इतना easily हम Tally ERP9 में entry कर सकते हैं। Now let's see the same thing of if people are using Tally Prime, then yes, how they can do this. So please share your screen and show the demonstration. तो Tally Prime users के लिए तो ये और भी easy है, which is in Tally Prime version you can directly fetch the data from Tally. But Tally Prime में you have to configure it by going to the Exchange tab to use this tool. ठीक है। So you go to the Exchange, then configuration, client server configuration. It will be both. Perfect. Tally Prime will ask for restart. It's a one-time process. Now our Tally is ready. Now we have to open the. टेम्पलेट आपको वहीं से लेना है एंड उसमें अनब्लॉक करने की नीड है, वो वाले टेम्पलेट को भी जो अभी Tally Prime इसको भी अनब्लॉक करने की सेम, तो इट विल बी द सेम कि ना आप वहां से Tally Prime को डाउनलोड करो एंड देन यू अनब्लॉक इट। ठीक है, सो दिस इज द Tally Prime टेम्पलेट। ओके, मतलब फॉर्मेट तो सेम ही है। The only improvement here is कि आपको यहाँ पे एक import ledger data का बटन मिल जाता है। Now if your Tally is open in background and आप ये बटन क्लिक करते हैं, वो डायरेक्टली Tally से ही सारा डेटा फेच कर लेंगे। ओके, नाइस। सो वी डोंट हैव टू लेजर्स को एक्सपोर्ट करने वाला काम जो हमने किया था वो करने की नीड नहीं, वो ऑटोमेटिकली लेजर रियल टाइम में Tally से ले लेता है। आई गेस दिस इज अ वेरी गुड फीचर। So now as you can see सारा डेटा यहाँ पे import हो चुका है, Tally के ledgers import हो चुके हैं। ठीक है, I have kept the data same
Okay. Now you again save this template, go to the website, Okay. So I filled the template. select the file. You come to the website and you, after saving, upload the file and click on convert. I will override this one to Okay. import and Hmm. so यहाँ पे आपको जाके Alt O दबाना है. Alt O प्रेस करेंगे आपको यहाँ पे पूरा interface मिल जाएगा. इंपोर्ट कर रहे हो इंपोर्ट्स के थ्रू Alt 4 Alt O. Alt O. ठीक है. Then you go to transactions. Okay. Transactions में जाके यहाँ पे फाइल फॉर्मेट में आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक एक्सेल मिल जाता है और एक XML मिल जाता है. Okay. Select the XML one. फाइल पाथ फाइल पार्ट डालना है. आपने वहाँ कर लिया. And if you are unsure कि आपने एंट्रीज सही से मारी है नहीं मारी है, तो you can always back up from them. Okay. Imported. Now you can see. अच्छा, इसमें मैंने पहले भी import कर रखा था, इस वजह से एक बार वापस करें. As you can see now अभी clear है, no entries. Now here you import. ठीक है. So आप देखेंगे सारी एंट्रीज आ गई है with narrations. परफेक्ट. नरेशंस भी दिखा दीजिए आप. या नाइस. ये रहेगा तो परफेक्ट, क्रिस्प एंड वेरी शॉर्ट में कितना एक शॉर्टकट अच्छा है ये टू मेक एंट्रीज. आई गेस आफ्टर दिस वीडियो देयर शुड लिटरली बी नो वन डूइंग दोस एंट्रीज मैन्युअली एटलीस्ट, है ना? नहीं करते. अभी मेरे ऑफिस में भी किसी को बोलते हो ना कि मैन्युअली एंट्री करना है, दे आर लाइक नहीं, मैं एक्सेल से करूंगा. नाइस. इट सेव्स टाइम एंड एफर्ट्स ना एक्चुअली, उस वजह. एंड अदर थिंग इज कि यहाँ पे देखो आपको टेम्पलेट का लास्ट अपडेटेड डेट मिल जाता है. सो आप अगर बहुत टाइम बाद यूज कर रहे हैं या फ्रीक्वेंटली टेम्पलेट डाउनलोड नहीं करते हैं, तो यू शुड ऑलवेज चेक कि कभी एरर आ रहा है तो टेम्पलेट तो कहीं अपडेट नहीं हुआ है. टेम्पलेट को लेटेस्ट ले लो. राइट. सेकंड इज प्लीज सेव योर फाइल बिफोर अपलोडिंग, क्योंकि वो तो मैंडेटरी होता है. यूजुअली द एरर इज इन द डेट फॉर्मेटिंग. जितना मैंने लोगों से पूछा, अपने आसपास में जो यूज कर रहे हैं उनसे पूछा, यूजुअली उनका एक ही एरर आता है कि डेट फॉर्मेटिंग में एरर है. करेक्ट. अगर फाइल जनरेट हो गई आपकी बट टैली में इंपोर्ट नहीं हो रही है, तो देयर इज यूजुअली डिफरेंस इन लेजर नेम्स में डिफरेंस होता है. जैसे टैली के लेजर में कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज किया होगा जो एक्सेल में नहीं यूज हो रहा होगा, तो उस वजह से मैंने देखा वो टैली में आपका लेजर के बाद एक ऑल्ट इंटर हो जाता है. आप जब एक्सेल से कॉपी पेस्ट करके लेजर बनाते हैं तो ऑल्ट इंटर हो जाता है टैली के उसमें, तो कितनी बार उससे भी एरर आ जाता है. मेक श्योर दैट लेजर नेम एकदम परफेक्टली सही हो. बाकी कोई भी एरर है तो यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट अस, विल हेल्प यू आउट विद दैट. एंड एक और चीज मेरे को ये बतानी थी कि जैसे अगर समझो मैं कोई पर्पसली एरर करता हूँ, जैसे डेट फॉर्मेटिंग का एरर कर देता हूँ. अभी एक बार डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं एरर दिखा देता हूँ. सो फाइल सेव कर दिया, रिलोड कर दिया क्योंकि वो लास्ट शीट उसमें अपलोडेड था. यहाँ पे आई सिलेक्टेड टैली प्राइम, तो क्लिक कन्वर्ट. अब कोड प्रोसेस हो रहा है. एज यू कैन सी डेट फॉर्मेटिंग में एरर था, तो एक टेम्पलेट एरर का पेज आ गया. तो यहाँ पे आपको देखो टेम्पलेट अपने ये लेटेस्ट वाला डाउनलोड किया है कि नहीं. डेट फॉर्मेटिंग चेक कर, ब्लैंक सेल्स नहीं होना चाहिए. जनरली कभी क्या होता है, घाई में लोग करते हैं ना, तो समझो ये लेजर डाला ही नहीं, तो इसकी वजह से भी एरर. इफ आपने यहाँ पे डेट डाला है तो यहाँ पे लेजर्स सारे होने चाहिए, मतलब डेटा सारा होना चाहिए. एंड टेबल टाइटल्स, ये वाले टाइटल्स को एडिट नहीं करना. अभी इसमें ये भी ऑप्शन है अपने पास कि अपन कस्टम वाउचर नंबर, जैसे अभी आप इसमें देखेंगे, जैसे इसमें देखेंगे अपन बैंक, एक मिनट सब क्लोज, अच्छा क्लोज हो गया था ना. जैसे इसमें देखेंगे वाउचर नंबर 5 पकड़ ऑटोमेटिक आया, ऑटोमेटिक आया. बट किसी में ना मैनुअली भी होता है. मैनुअल दे प्रेफर मैनुअल वाउचर नंबर. सो उस केस में वहाँ पे अपन एक मैनुअल वाउचर नंबरिंग का भी टैब ऐड कर सकते हैं. मतलब उसके लिए तो मेरे को वापस से स्पेशलाइज्ड कोड बनाना पड़ेगा किसी के लिए. अभी एट प्रेजेंट लगता है कि वो फंक्शनैलिटी नहीं है. राइट. देयर इज एन ऑप्शन फॉर मैनुअल वाउचर नंबर्स, देयर इज एन ऑप्शन फॉर मल्टीपल डेबिट क्रेडिट. अभी किसी को चाहिए, जैसे यहाँ पे हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, एक ही लेजर डेबिट और क्रेडिट हो रहा है, किसी को मल्टीपल करना है तो उसके लिए आप कस्टमाइज भी बना सकते हो एक्सेल को. ग्रेट. आई गेस डेफिनेटली है ना, मतलब मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द इश्यूज विल बी सॉल्व बाय दिस टेम्पलेट ओनली. बट हाँ, जिनको भी अगर कुछ कस्टमाइज चाहिए तो मेहता बिजनेस सॉल्यूशंस आई गेस they can definitely contact, and yeah, definitely you can solve the whatever issues they might be having.
Okay, I think great. It was a very great demonstration, Preet, that how easily it is, है ना, मतलब अभी तक मेरे को भी नहीं पता था कि ना there is such a tool जहाँ पे इतना smoothly आपका है ना टैली में एंट्रीज हो सकते हैं. So I guess people those who are using Tally Prime and Tally ERP, they must at least give a try, and they can definitely save multiple hours every day by using the tool. So thanks, Preet. Thank you so much for like coming forward and sharing this tool. It's free of cost, of course. And and ये आपने बनाया and you are sharing it for everyone's benefit. So it's really great. And we look forward to people like you that who inspire to automate and also share their learnings with others. So really great having you on the channel and looking forward for more such automation from your side. Thank you so much. And definitely, Preet, we're looking forward for more such automation tools from your side as well. Yes, sir. Thank you for providing me this opportunity. And definitely, We I would can wish like कि build. ना जैसे आपने सेल्स का बताया, सेल्स की एंट्रीज का, I would want कि आप है ना कुछ टूल बनाओ, and definitely I would be happy to help anything that with problem you see in CA form. So looking forward for more such automation tools from you, Preet. Thank you so much. आपके गाइडेंस में बना ली. Definitely. Thanks.